obviously sad news शकुर राशिद शकुर भाई के मदर फोत हो गए हैं, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ प्लीज एक मिनट के लिए उनका फातिहा शरीफ कह दें प्लीज। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू शुक्रिया। अच्छा, जस्ट अपडेट देना चाहता हूँ आपको। 18 जो टेस्टिंग हमने रीटेस्टिंग हमने की है, of the retests that we did for all of the players and support staff जो पहले negative थे, so 18 players were retested और 11 officials को भी हमने retest किया था। Out of those 18 players and the 11 officials that were retested, every test came back negative. So Allah ka shukr se, all of those who are negative first time, negative second time. So they will be getting on the plane tomorrow for Manchester. In addition, Rahel Nazir ka bhi humne test kiya, because we obviously need to have a backup currently to support the training schedule in England. And so Rahel Nazir ka bhi test hua, and Rahel came back negative as well. So Rahel is also going to be traveling with the squad tomorrow. इसके अलावा हमने वो 4 reserves players भी हमारे थे, वो मूसा खान, बिलाल आसिफ, मोहम्मद नवाज और इमरान बट, उनके भी टेस्ट हमने किए थे। Of those 4, Imran Butt's result came back positive. Musa, Bilal and Mohammad Nawaz were negative. Backup के लिए मूसा खान भी इंग्लैंड जाएगा, and he will be leaving with the squad tomorrow. So in total, 20 players जाएंगे कल, and of the 18 plus Rahel Nazir plus Musa Khan, that will take us up to 20 players that will travel to England tomorrow with the 11 officials. Separately, jab team England mein honge, in order to provide some additional support while some other players are still not ready to fly. Zafar Gohar, jo abhi Leicester mein khel raha, he will be joining the Pakistan squad just for training for 2 or 3 weeks. He's going to be having 2 tests done. He requires 2 negative tests over the next 3 to 4 days before he can join the Pakistan team at the hotel. Team pehle Worcester jayegi, so the team's going to head off to Worcester first for 14 days. 14 din quarantine period ke baad wo Derby jayenge. Derby, from the 13th of July, they'll be based in Derby, and Zafar Gohar will join the team in Worcester once his 2 negative tests come back. Acha, kal humne additional bhi tests kiye the for the 10 players who were tested positive in the first round of tests. Of those, 6 have come back negative, 4 have come back positive, and plus Malang Ali, who was positive the first time, has come back positive again. So in total, 6 negatives and 5 positives. The 6 players who have come back negative are Mohammad Hasnain, Shadab Khan, Fakhr Zaman, Mohammad Rizwan, obviously Mohammad Hafiz, and Wahab Riaz. And of the 4 that have come back positive, they are Kashif Bhatti, Haris Rauf, Haider Ali, or Imran Khan, or separately Malang Ali. As you are all aware, Hafiz and Wahab had a separate test during this week, which they decided to do a private test. This test was outside of the PCB testing process or program that we had set up. So whilst they have had a positive first test, a second negative test, which they carried out themselves, and they've had another negative test,
they will have to retest again in order to get 2 negative tests in a row, as based on the Pakistan PCB testing protocol and the process that we had set up. What they did separately is entirely up to them, but as far as we are concerned, we will only recognize 2 negative tests in a row as part of our testing process and procedure that we have set up. So that's it from me. I'm very happy to start to take questions. Thank you, Wasim sir. Shahid Hashmi, Majid Bhatti, or Salim Khalik, please. Okay, Shahid ko आवाज दूसरों से करवा ले, मैं बात करूं. Majid Bhatti. वसीम साहब, लास्ट 3 डेज से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत कुछ रिगार्डिंग मोहम्मद हफीज आता रहा. एक तरफ आप पीसीबी के 5 इयर्स प्रोग्राम की बात करते हैं, कल 7 पेजेस का एक प्रेस रिलीज आया, बड़ा पीसीबी अपने प्लान्स बताता है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का साल से बड़े प्लेयर्स के डिसिप्लिन का रहा है. वो 20 साल पहले भी इन डिसिप्लिन में इन्वॉल्व होते थे, क्रिकेट बोर्ड उनको क्लीन शीट देता था. अभी मोहम्मद हफीज का आपने कहा, मोहम्मद हफीज ने जिस तरह पीसीबी की अथॉरिटी को चैलेंज किया और फिर वो सोशल मीडिया पे गए. जुनैद खान एक और प्लेयर है, वो भी जाके पीसीबी के सिलेक्शन प्रोसेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी डोमेस्टिक के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं. कामरान अकबल, वो भी पीसीबी की सिलेक्शन पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं. तो ये गवर्नेंस का जो इशू है, जिसमें प्लेयर्स आपके प्रोसेस को, आपके सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या इन प्लेयर्स के खिलाफ भी कोई एक्शन का प्लान है, या फिर एज इट इज जिस तरह सिस्टम चल रहा है एज इट इज चलता रहेगा? भट्टी साहब, एक चीज हम पहले कर रहे हैं, इज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट for all our players, domestic contracts and central contracts. And I think that jo Hafiz ne kiya, maine Hafiz se baat bhi ki hai. He understands, he had his reasons why he did it. He didn't break any rules because he didn't say anything derogatory. Lekin one thing I spoke to Hafiz was that the process jo hum run kar rahe hain, usko he brought into a little bit of disrepute, because we are obviously running a testing process. So I think, this situation that has happened, we've had long discussions internally in the last 2 or 3 days. There will be a clear code of conduct with what the penalties will be for individuals, centrally contracted players, and for our domestic players as well, mainly our domestic players. Because they care, centrally contracted players, there's a protocol they follow around social media. Mohammed Hafiz isn't a centrally contracted player, so he has to come under some code of conduct about what you can and can't do. So we have now, within about 3 or 4 weeks, we will have a clear code of conduct, which we will share with the media, and what the repercussions will be for people who breach that code of conduct. हम एक professional game group को भी हम set up कर रहे हैं, that's going to police domestic cricket, looking at conduct, looking at all of these things. So this will be put in place. I agree with you. I think that there's been no sanctions that has been placed on any players in the past properly for breaches. And it's something now that we are putting in place as part of our governance. So jo aap governance ki baat kar rahe hain, I totally agree with you. It hasn't been great in the past, but this will be addressed very soon. Salim Khalik. जी, अस्सलाम वालेकुम. वसीम साहब, टेस्ट में जैसे पहले 10 खिलाड़ियों का टेस्ट आ गया था, वो क्लियर नहीं रहे थे, उसके बाद एकदम अब क्लियर हो गए उनमें से, तो इंग्लैंड वालों को कहीं हमारे सिस्टम पर कोई शकूक तो नहीं है कि यार ये क्या कभी कह रहे हैं कि ये सारे जो है इतने सारे पॉजिटिव है, अब सारे जो है वो क्लियर आ गए, या वो लोग जो है एतमाद कर रहे हैं हमारे सिस्टम? नहीं सलीम साहब, बस एक ही सवाल उनने एक जवाब दिया उनने, कि हमने एक सवाल पूछा उनको around the number of negative tests that are required. देखिए यूके में they are tightening the borders now. यूके issues उनके लिए आ रहे हैं, so they are tightening the borders, and what they are saying now is that you need 2 negative tests if you have been positive previously. लेकिन वो जानते हैं cultural भी इधर पाकिस्तान में है, family networks हर चीज, तो ऐसे कोई issue नहीं है इंग्लैंड से. They are clear on the protocol that has been followed. Peter Harcourt, jo ICC wala, the chair of the ICC medical committee,
प्रोफेसर निक पेस इंग्लैंड से, वो तकरीबन 2 या 3 मरतबा हफ्ते में बात करते हैं with us, and they have been talking to us and we have been discussing and bringing them up to date on all the testing procedures that we've been carrying out. So ऐसे कोई issue नहीं है इंग्लैंड में. अतीक, दानियाल और महमूद रियाज. अच्छा वसीम साहब, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए पहले जब कोरोना टेस्ट हुआ, तो उसके बाद ये सवाल आ रहा है कि उनको पीसीबी ने अकेला छोड़ दिया, घर पे जाने के लिए उनको कह दिया, पीसीबी खुद उनको जो है अपने एकेडमी में रखता या होटल में क्वारंटाइन करता, आपने मुश्किल सूरत हाल में खिलाड़ियों को तन्हा छोड़ दिया. तो आप समझते हैं कि ये बात सही है कि जब उन 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए उस वक्त पीसीबी ने जो है उनको कहा कि आप अपने अपने घर चले जाइए, बजाय इसके पीसीबी के उनकी केयर करता है? नहीं, देखिए दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही होता है. ये सेंट्रल कोई they don't bring people into a central place to quarantine. Quarantine घर में करते हैं लोग. और Dr. Sahel भी has spoken 6 or 7 times to each player during this period of time. मैंने भी बात की है प्लेयर से, मिसबा ने भी बात की है जो पॉजिटिव वाले थे. सो ऐसे कोई बात नहीं है कि हमने उनको अकेला छोड़ दिया. देखिए ये सेल्फ डिसिप्लिन वाली भी बात होती है, that you self isolate at home. हम इधर लाहौर में ले आए उनको, they have to travel to get here. So I think it's the right thing to do. I have no issues with what we have done here. Yeah. Wasim bhai, the ECB issued the statement yesterday जिसमें वो कह रहे थे कि players who tested positive will not be able to travel with the advanced group. That seemed to be something of a rebuke to the initial PCB reports that they were considering maybe कि one negative test के बाद कुछ players travel करने वाली possibility explore हो रही थी. Could you shed a little bit of light on that and why the PCB were exploring that when initially they had made it very clear that players would need to return 2 negative tests? देखिए डेफिनेटली ये अच्छा सवाल है. पहले जो हमने बताया था कि they will need 2 negative tests. This was right at the beginning. 2 negative tests in order to do that. Information जो हमें आ रही थी, I mean the ECB contacted us as well, and वो कह रहे थे कि शायद because the positive tests were carried out on the 21st, because 7 days have elapsed, there may be an opportunity for these players to travel on the 28th. Once they've been deemed positive. Because in sub out of 9 out of the 10 Danial, they found antibodies. Antibodies ka ye matlab hota hai ki inside of their bodies, at some stage they've probably had the virus at some stage. So residual virus jo hota hai, that's probably still left in their system. So they're coming to the end of it. So is zariye they were asymptomatic. Koi symptoms bhi nahi hai, aaj bhi koi symptoms nahi, yesterday koi bhi nahi symptoms inke. So that's the reason why. But we have changed it because the ECB now have told us, based on UK regulations, anybody tested positive would need to evidence that they have had 2 negative tests back before they can now travel. क्योंकि ये भी evolving situation है जो हमें वो advice दे रहे थे पहले. We went on that. When they changed it and said, in order to enter the UK, this is what's going to be needed. So we followed their protocol. अच्छा वसीम साहब, जिस तरीके से कि ये पीसीबी का एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि ये टूर जो है होने जा रहा है, लेकिन रैपिडली जिस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, आप समझते हैं कि अभी दौरा जब शुरू होगा तो उसके बाद कुछ और अगर मजीद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो उनको टैकल करने क्योंकि प्लान बी भी मौजूद है? देखिए प्लान बी जो है ना वो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट है वो ईसीबी वाला, because there will be nobody will be able to come into that. Testing उनके 24 घंटे के बाद होगी once they arrive in England. Once the results are there and they're negative again, they'll be allowed to practice under quarantine. So hotel भी उनका पूरा होटल उनका भी होगा, वुस्टर में भी, डर्बी में भी. उसके बाद वो practice facilities वो पाकिस्तान की टीम वो इस्तेमाल करेगी. So there's not going to be anyone else doing it. So once ये biosecure bubble की जो ये बातें लोग कर रहे हैं and the PCB वो बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज से भी हमने बात की है एंड वेस्ट इंडीज ये कह रहे हैं कि we've been in England 2.5 weeks. जो प्लान्स ECB ने हमें दिए थे, they have implemented them 100%. तो हमारे प्लेयर्स के लिए कोई इश्यूज नहीं है.
So once the players are negative, everybody's together, there should be no issues during the time when they're in England. Last round of questions, Yahya Hussaini, Shahid Hashmi और शुएब जट. थैंक यू वेरी मच समी बर्नी साहब. वसीम, आप बात कर रहे हैं सिस्टम बनाने की, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की. दैट्स वंडरफुल, होना भी ऐसा ही चाहिए. लेकिन आप नहीं समझते कि एक तरफ आप खिलाड़ियों को जो है वो डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी तरफ से जो है बहुत सारे ऐसे सवालात उठ रहे हैं जिसका आपको जवाब देना चाहिए. आपने एफर्ट की कि पाकिस्तान का इंग्लैंड का दौरा अच्छे अंदाज में हो, लेकिन आपके अपने मेडिकल के डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये बहुत बड़ा रिस्क है. आपके रात को टिकर कुछ और चल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कुछ और कह दिया. फिर हफीज की जहां तक बात है, आप नहीं समझते कि एथिकली आपको जो है वो अनाउंस नहीं करना चाहिए था? ये इस बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ कि 3 महीने पहले आपने एलेक्स हेल्स का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया था और आप हफीज के साथ बात कर रहे हैं. हफीज और आपकी वो बात थी, वो मीडिया में कैसे सामने आ गई? हफीज की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं आई कि आप इससे पहले भी जब हफीज ने मैच फिक्सिंग पर स्टेटमेंट दिया था कि आपने हफीज को जो है मना किया बात करने से, फिर अभी भी यही हुआ कि आपने हफीज को जो है वो डांट डपट की है. तो आप नहीं समझते कि इन चीजों को भी जो है वो देखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए वो डांट वाली बात मैं खुद नहीं की. आई वाज आस्क्ड द क्वेश्चन, किसी ने मुझे सवाल पूछा कि हफीज का क्या आप करेंगे. मैंने खुद बता दिया था, मैंने बात की है हफीज से, नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो ये पहली चीज़ है. दूसरी चीज़, वो जो डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं कि देखिए डॉक्टर ने ये कहा था कि इट्स हाई रिस्क. अच्छा, हाई रिस्क ये देखिए हर सिचुएशन में अल्टीमेटली ये डॉक्टर है. So every situation is high risk for everybody at the moment in terms of पाकिस्तान में आप situation देखें. लेकिन ये situation मैंने उस दिन भी clarify की है कि देखिए हर चीज़ में risk है, लेकिन जो हम protocol, जो हम procedures हम deliver कर रहे हैं टेस्टिंग के और biosecure environment जब इंग्लैंड में जाएंगे players, is that they're going to be as safe as anywhere in the world. So ऐसे कोई इशू नहीं है कि ठीक है प्रोटोकॉल्स स्ट्रीमलाइनिंग की आप बात कर रहे हैं. मैंने माजिद भट्टी साहब को भी मैंने कहा कि देखिए there's lots of things अभी हमने इम्प्रूव करना है. ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था, सबके ऊपर प्रेशर आ रहा था. So it wasn't an easy situation. हर वक्त ये इवॉल्व हो रहा था, मिस्टेक्स भी हो गए हैं, चीज़ें अच्छे भी हमने डिलीवर की है, लेकिन ये लर्निंग्स है हमारे लिए. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कोविड और क्रिकेट को को एग्जिस्ट करना पड़ेगा 1 साल के लिए, 18 months के लिए. तो हमारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, we will be learning from this to make sure things are better moving forward. अच्छा, दूसरा सवाल क्या था? पता नहीं. शायद समी, मेरा सवाल हो गया, थैंक यू. ओके, शुएब जट. मैं करूं समी भाई? ओके, शुएब जट नहीं है. जाहिद गफ्फार आप कर लें. अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई. अस्सलाम वालेकुम. मौका दे दे समी भाई. वालेकुम सलाम. वसीम भाई, मुझे ये मालूम करना था, शुएब मलिक का जैसे कोविड टेस्ट नहीं हुआ है और वकार यूनुस का भी नहीं हुआ है, तो इनके टेस्टिंग के हवाले से क्या अपडेट है? कब इनकी टेस्टिंग होगी? आया कि ये जाने से पहले पाकिस्तान में होगी या वहीं इंग्लैंड में ज्वाइन करके वहाँ होंगे? अगर इनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर इनकी वापसी होगी या वहीं टीम के साथ रुकेंगे अगर इंग्लैंड में टेस्ट हुए तो? वकार तो कर लिया, उसका नेगेटिव आ गया ऑस्ट्रेलिया में, तो वो खुद वो ट्रैवल करेगा, तो उसका टेस्ट हो गया. और शुएब मलिक तो तकरीबन 23rd या 24th चलेगा यहाँ से, so उसके पहले उसके 2 टेस्ट हो जाएंगे and inshallah both will be negative, so he won't be able to travel until both tests are negative. अगर शुएब जट हैं तो आखिरी सवाल ले लेते हैं. बिल्कुल वसीम खान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट पे आप लोगों ने अनाउंस कर दिया, फिर उसी हॉस्पिटल से दोबारा टेस्ट हुए तो लड़कों का जो स्टांस था कि उनके मस्बत जो है वो नहीं सही आए, वो मनफी थे, तो वो मनफी आ गए. तो ये हॉस्पिटल से भी आप पूछेंगे कि कैसे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इससे सफ़र करेगी, आपके टॉप प्लेयर्स अगर वहाँ नहीं जाते, वहाँ पे जो है मुश्किलात से हमें दो चार होंगे. तो ये हॉस्पिटल की जो है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेक पे लगा दिया था पूरी जगह, हर जगह यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है. और दूसरा, आज 8 वुमेन क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया है. जरा इस पर भी बता दीजिएगा. ओके शुएब, हम सिर्फ सवाल लेंगे. वसीम साहब, वी विल टेक ओनली क्वेश्चन ऑन कोविड. हाँ ठीक है. देखिए समी, ये तो शौकत खानम में जो हमने ये लैब हमने सिलेक्ट किया था रिजल्ट्स के लिए, कि वी हैव वर्क डिसाइडेड टू वर्क. हर चीज़ में एक प्रोटोकॉल होती है, एक सिस्टम होती है. तो हमने ये एक सिस्टम डेवलप किया था कि इनके हम 2 टेस्ट करेंगे. इफ द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव होना पड़ेगा. इफ द फर्स्ट वन इज नेगेटिव तो सेकंड चाहिए नेगेटिव.
तो हमने ये एक प्रोसेस सॉर्ट आउट किया था. प्लेयर्स ने वहाब और हफीज मेड अ डिसीजन टू गो सेपरेटली एंड हैव दैट डन. ठीक है, वो फैमिलीज को भी ले गए थे, बिल्कुल उनकी चॉइस थी. लेकिन जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो ECB हमसे देख रहे हैं, they want to make sure जो हमने प्रोसेस आपने आउटलाइन किया है, that everything is followed to that process. So that is what we're doing and that's ये हम काम कर रहे हैं. तो दूसरी चीज़ अब मेरे ख्याल क्या नाम है, या हुसैनी साहब ने पूछा था कि हमने अनाउंस क्यों किया था, मुझे अभी याद आई है कि देखिए इधर पाकिस्तान में न्यूज़ नहीं हर वक्त चलती है, या साहब, nothing stays secret. So ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि देखिए जो इनका टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो इनको सेल्फ आइसोलेट करना पड़ता है, and we have a duty to inform them as soon as we know they are positive. ये प्रोटोकॉल होता है. So हर चीज जो रिजल्ट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये सीधे ये वो रिजल्ट्स वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं as soon as anybody takes a test, a COVID test. तो हमारा ड्यूटी ये भी था to inform them as soon as possible. So हमने एक पूरी कोशिश की है to keep the media informed of progress over the last 4 or 5 days. So इसलिए हमने प्लेयर्स को भी बता दिया था and that's why we went public. क्योंकि सोशल मीडिया में हर चीज़ ये चलती है. It's important that we manage the message and the players were informed first and we told the players हम इसको announce भी करेंगे. वसीम साहब, हम नादरा मुश्ताक का एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे. नादरा. ओके, नादरा नहीं है. अब्दुल गफ्फार साहब, हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? जी जी हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. अच्छा, मेरा क्वेश्चन वैसे तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ कि प्लेयर्स के हवाले से कि जुनैद खान जो हैं वो काफी बेहतर थे. खैर सिलेक्शन का आप किस और से कर लें, मैं सिलेक्शन का. नादरा, आपका सवाल क्या कोविड रिलेटेड है, टॉपिक के ऊपर है, या आप एक साइड क्वेश्चन पूछ रही हैं? समीर साहब अगर मौका दे तो कोविड के हवाले से. ओके, हसन. अच्छा वसीम साहब, जैसा कि गाइडलाइंस ECB दे चुकी है, जब हम पाकिस्तान टीम इंग्लैंड पहुंच जाएगी तो बिफोर फर्स्ट टेस्ट मैच 5 टाइम्स इनके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे. समझते हैं खिलाड़ी पहले से थोड़े से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि बार बार टेस्ट देने से कहीं ऐसी दिल में बात या जहन में बात ना जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो शायद हम टूर कंप्लीट ना कर पाए और हमें फिर बेंच पे ही बैठा रहना पड़े. देखिए ये हम पहले कह चुके हैं, ये दिस इज़ वेरी मच अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. तो ECB इसलिए प्रोटोकॉल कर रहे हैं कि प्लेयर्स की बेहतरी के लिए, फॉर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी. तो हर 5 या 7 दिन के बाद वो टेस्ट करेंगे. एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए पूरे मुल्कों में ऐसे लोगों का प्लेयर्स के टेस्ट अभी ऐसे कर रहे हैं. सो दे आर टेस्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. वेयरएवर क्रिकेट विल रिज्यूम देयर विल बी ऑनगोइंग बायोसिक्योर एनवायरनमेंट्स, ऑनगोइंग टेस्टिंग while teams are touring other countries. So ऐसे नई बात नहीं है. प्लेयर्स को हमने ये भी समझाया कि देखिए थोड़ी सब्र भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट एन इजी सिचुएशन, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं. एंड सो ये जो कर रहे हैं इंग्लैंड, वो ECB वाले दे डू प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं. सॉरी वसीम साहब, मैंने याकूब साहब को नहीं देखा था. क्या याकूब साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आप सवाल कर सकते हैं, एंड देन वी विल क्लोज द सेशन. समीर भाई मैं भी कर लूं. याकूब साहब, आपको आवाज आ रही है? समीर भाई. रिजवान अली, आपको आवाज आ रही है? एक छोटा सा सवाल है मेरा. याकूब. हाँ जी समीर, मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं क्या टॉपिक क्या है, मुझे पता नहीं है. ऑलराइट, ओके, सो डोंट वरी, वो ऑडियो आपको मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें. उबैद. ओके, एक छोटा सा सवाल. उबैद, आप सवाल कर लें, देन वी विल क्लोज द सेशन. यार एक छोटा सा सवाल है मेरा. ओके उबैद ऑफ. असगर आप सवाल कर ले. एक सवाल छोटा सबका होता रहेगा तो 5 बज जाएंगे. आपकी डेडलाइंस टाइट है. तो कौन करे, मैं कर लूं? प्लीज. वसीम साहब से मुझे ये पूछना था कि हम कोविड की सूरत हाल में इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड के मैदान को आबाद कर रहे हैं. तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि क्रिकेट का आगाज हो और हम उसमें अपना हिस्सा डालें. बट क्या कोई एक बेनिफिट अगेंस्ट इस सीरीज के पाकिस्तान के लिए है? बेनिफिट ये है भाई कि क्रिकेट इज रिटर्निंग, एंड आई थिंक आपके लिए भी, आप ही मीडिया वाले हैं, आपके लिए भी क्रिकेट चाहिए. सो सबके प्लेयर्स वांट टू प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट बोर्ड हैं, क्रिकेट चाहिए हमें, क्योंकि देखिए हम पहले से कह रहे हैं कि वी वुड नॉट पुट द प्लेयर्स इन एनी डेंजर इफ वी weren't convinced. जो ECB में जैसे वेस्ट इंडीज अभी है इंग्लैंड में, आप उनको भी सवाल पूछ सकते हैं, उनके लिए क्या है. उनके लिए ये भी है कि प्लेइंग क्रिकेट अगेन.
तो फिर ये next time भी solidarity हो जाती है दूसरे मुल्कों के साथ. And we want other countries to be able to come here because we have also taken a step to go to their country. बिल्कुल risk कोई नहीं दे रहे to the players. We biosecure वो जो सब वो venues, hotels, हर चीज जो ये spend करेंगे England में, everything will be down to the T, planned properly. We know completely every part of the plans that they have put in place. कैसे players को protect करेंगे, कैसे cricket को protect करेंगे, आपने देख लिया ICC ने भी नई वाली regulations भी release कर दी हैं. So everybody's trying to get cricket back on. So that is the most important thing. But if it was dangerous for players, we wouldn't be going. Okay, gentlemen and Nadra, बहुत शुक्रिया आपके time का. Thank you very much indeed and have a great day. Thank you Wasim साहब. शुक्रिया जी.